Okay, good morning to all of you. Am I audible to online students? Yes, ma'am. Okay, so what we have done in the last practical, topologies were completed. All the 5 topologies, star bus. Okay, all the 4 topologies we have done, right? Okay, have we completed the email configuration? Was done, right? Okay. Okay, so today we will perform one practical which is based on configuration of HTTP server, right? Till now, how many practicals are completed? Only 4? Which are they? Using CLI command. Second is networking command. Email configuration and fourth one was Let me check. You have completed all 4? તમારે થઈ ગયા છે? Fourth કયો ટોપોલોજીસ માં નહોતું તું? Okay. Okay, so today we will start with the another practical, that is configuration of HTTP protocol. So I'm pasting the definition in the chat box. તમારા લોકોને લખવી હોય તો લખી લ્યો. Configuration of HTTP server in a packet tracer software packet tracer software. Okay, so first of all, we all know about the HTTP protocol. What is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Okay, so what you know about the HTTP protocol? Online students can also answer. every time you need to request server. Okay, it is used for what? Use for getting a page on browser. Okay, getting the page on browser. What else we can say about HTTP?
We have discussed, I think, 2 or 3 lectures on HTTP. HTTP can be either persistent or non-persistent. Okay. And for security purposes, we use HTTP as for security, which is maybe the certificate which we get. Okay. And for I think for HTTP from persistent it is 0 and no HTTP persistent is 1 and it's non-persistent is 0. Okay. For persistent, it is 1.1. HTTP is referred to as HTTP 1.1. And for non-persistent, it is referred to as HTTP 1.0, right? And the request on which the HTTP request goes on which port number? Are you sure? 8080, right? FTP works on which port number? FTP 21. Good. Or POP3 143 or IMAP? Yes, IMAP works on 110, right? So these are the port numbers that you have to remember. Now, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, what is connection oriented or connectionless, right? So connection oriented क्या होता है? If there are two entities which are communicating with each other and they process for the handshaking process, means they go for an handshaking process, sending the request for connection establishment, request is accepted by the another entity, and when the data transfer take place after establishing the connection between the two entities, then we can say it's a connection oriented. No, we cannot say peer to peer. Then कनेक्शन लेस है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसके पहले कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, डायरेक्ट ही डेटा ट्रांसफर डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट? सो वी कैन से कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल है, वन इज टीसीपी एंड अनदर वन इज यूडीपी, right? So TCP है, we all know that it follows a three-way handshaking process, right? So TCP is referred to as a connection oriented protocol. वो connection oriented क्यों है? That we know, right? And UDP is connection less, right? UDP ऐसा भी आ सकता है that why TCP is a reliable protocol and why UDP is unreliable. So TCP reliable क्यों है? तो उसके लिए reason यही है कि वो connection oriented है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, that is before the data transmission the handshaking process is performed. That means the connection is established between the two entities, right? So if the connection is there before the data transmission, we get to know that if any data packet is lost in between, then that packet is retransmitted, right? Retransmission की जो facilities है वो TCP में है, but there is no any, we can say, concept of retransmission in the UDP, right? हमारा जो YouTube है वो UDP प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, right? Sometimes you might have observed कि कई बार हम लोग वीडियो देखते हैं तो कई बार वीडियो ब्लर हो जाता है, right? So वो क्या हो रहा है कि कुछ कुछ बीट्स छूट गए हैं, right? पर वो फिर से रीट्रांसमिट नहीं होंगे, right? एट ए टाइम वो फिर से रीट्रांसमिट नहीं होंगे, वो क्या होगा, थोड़ी देर ब्लर रहेगा फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. तो दैट मीन्स क्या कि कुछ बीट छूट गए, इसके लिए हमारी जो क्लैरिटी थी वो कम हो गई, राइट? जिस भी एप्लीकेशन में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है दैट वेदर व्हाटएवर यू हैव सेंट इज सक्सेसफुली रीच्ड द डेस्टिनेशन, एट दैट टाइम वी कैन से इट यूजेस अ टीसीपी प्रोटोकॉल, राइट? सो टीसीपी इसलिए रिलायबल है क्योंकि कोई भी डेटा सेंड होता है देन क्लाइंट एंड यूजर आर नोइंग ईच अदर, दैट इज द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, और एक बार कोई डेटा पैकेट भेजता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिलता है दैट योर पैकेट हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, राइट? अगर डेटा पैकेट नहीं पहुंचता है देन द फैसिलिटी ऑफ रीट्रांसमिटिंग दैट पैकेट, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि वहां पर कोई बीट छूट नहीं जाता है, कोई डेटा पैकेट अगर लॉस्ट भी हुआ है देन इट कैन बी रिकवर्ड बाय यूजिंग द रीट्रांसमिशन, बट व्हाइल इफ वी आर यूजिंग द यूडीपी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रीट्रांसमिशन क्योंकि कनेक्शन ही एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, राइट?
अगर डेटा सेंड करना है, डेटा सेंड कर दिया, आफ्टर दैट सेंडर और वी कैन से कि जो सर्वर या फिर क्लाइंट है, दो अगर एंटिटी लेते हैं तो सेंडर को उससे कोई कंसर्न नहीं होता है कि मैंने जो डेटा सेंड किया वेदर इट इज सक्सेसफुली रीच्ड और नॉट, बस मैंने डेटा सेंड कर दिया, हो गया, राइट। अभी डेटा सेंड हुआ है नहीं हुआ इसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, सो रिट्रांसमिशन का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है, right? So that's why we can say TCP is reliable and connection oriented while UDP is unreliable and connectionless. थोड़ा HTTP से बाहर हो गया but it's okay. So HTTP में we have already seen the HTTP message format, right? So message format में हमने क्या देखा था? Which message format we have seen in HTTP? कोई बता सकता है? HTTP request message. Okay, HTTP request message. And HTTP response message. Response message, right? So HTTP request message में कौन-कौन से fields थे? कैसे मतलब? We have seen the 4 fields. If you might have Request remembered, line, status, header line, request, yes, request line, header header line, line, blank line, and entity entity body. body. याद आया? Response message में कौन से fields थे? Ma'am, status line, header line, Status blank line, line, and entity body. very good. Status line, header line, blank line and entity body. इतना जल्दी कैसे भूल गए? अभी ये 3-4 लेक्चर पहले ही हुआ था, 3-4 भी नहीं हो गए, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर पहले ही हुआ था ये, राइट? इतना जल्दी मत भूल जाओ, अभी मिड सेम नजदीक है, रिवीजन करते रहो। ओके, सो वी ऑल नो अबाउट दी HTTP। अब यहाँ पे करना क्या है? टेक अ 2 PC, यहाँ 3 PC, यहाँ पे पहले 3 PC ले लो। Let me share my screen. अगर आप लोग ऐसा करो, आप 5 लोग हो तो आप सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे डेमो दे देती हूँ, फिर आप लोग अपने पीसी में ट्राई कर सकते हो, राइट? क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं, आप लोग कहाँ से देखोगे? प्रोजेक्टर तो नहीं है, राइट? लैब में जनरली प्रोजेक्टर नहीं होता है, बड़ी लैब में ही होता है। सो हियर वी हैव टू टेक अ 3 PC, तुम लोग आ भी जाओ, एंड देन फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक 1 स्विच, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक स्विच ली, फिर एक सर्वर लेना है यहाँ से। नाउ आई हैव टू कॉन्फ़िगर द सर्वर। यहाँ भी जा, PT स्विच, जो जनरल स्विच हम लोग लेते हैं जनरल पर्पस के लिए, वही स्विच मैंने ली है, राइट? और उसी सेम टाइप का मैंने यहाँ पे सर्वर लिया है, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस विद ईच अदर। So for that I am using the automatically configured wire. Then I need to connect the switch to the server. अभी ये सर्वर कौन सा है? We can say it's an HTTP server. So we'll name it as HTTP server, right? अभी मुझे configure करना है सर्वर को, right? So what I'll do in that case, first of all I need to give the IP address to the server. So let's say I am giving the IP address 10.10.10.0. ये तो सबनेट मास्क कैसे ही आ जाएगा? अब डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सर्वर पे आ रही है, राइट? तो डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, so we'll just close this. Now we need to give the IP address to all the PCs over here, right? But मैंने बोला था कि अगर आप ये हैबिट पहले से रखते हो तो फिर अच्छा है, पहले बाहर आउटर साइड पे IP एड्रेस दे दो, ताकि हमें पता चले कि ये PC का IP एड्रेस क्या है, राइट? और मुझे अंदर क्या देना है, डिफॉल्ट गेटवे क्या रखना है, वो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। So first of all I am giving the IP address at the outer side, so 10.10.10.1, right? For same यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे मैंने host ID चेंज किया है, I've just changed the host ID. Now the same I'll 10.10.1, so here the host ID will be different, 10.10.2. अगर आप ये नहीं कर तो ये स्टेप स्किप करना है, फिर भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक हैबिट अच्छी रहती है कि अगर आप बाहर भी आईपी एड्रेस देते हो तो आप पीसी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग। ये तो मेरी पहले से ही हैबिट है, मैं पहले बाहर दे देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स है, राइट? आगे जो आएंगे वो बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स आएंगे, ज्यादा पीसीज होंगे, ज्यादा नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होंगे। सो अगर ये आपकी हैबिट होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे आगे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट? सो tan.2 same shit battery low, tan.3, right? Now the internal configuration, PC0 IP configuration, tan.tan.tan.1 सबनेट मास्क टैब डिफॉल्ट गेटवे। यहाँ पे गेटवे क्या होगा, मैंने यहाँ पे जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वही मेरा गेटवे होगा। तो tan.tan.0 क्लोज, ये सेव करने की जरूरत नहीं है, ये सेव अपने आप हो जाता है। सेकेंड पीसी डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस tan.tan.tan.2, वेरी गुड। टैब डिफॉल्ट गेटवे दैट विल बी सेम, राइट? डिफॉल्ट गेटवे सब पीसी का सेम रहेगा। Same for third PC, tan.tan.tan.3 tab tan.tan.tan.0 क्लोज दिस। अभी हमको करना क्या है, सर्वर HTTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। So for that we need to go to the services of the server. So click on the server, go to the services। यहाँ पे सर्विसेज में मैंने बोला था बहुत सारी सर्विसेज है। अभी हम जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़ेंगे उसको भी हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कॉन्फ़िगर द HTTP सर्वर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर द HTTP सर्विसेज इज ऑन और ऑफ। बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहती है, बट फिर भी अगर ऑफ है सो वी नीड टू ऑन दिस सर्विसेज, राइट? फिर गो टू दी DHCP, ये सारी सर्विसेज जो अगर चालू रह गई है तो इसको हमें ऑफ करना है। सो TFTP यहाँ पे था। नाउ गो टू दी HTTP अगेन, index.html फाइल को एडिट करना है। सो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, एडिट index.html फाइल, यानी कि जो पेज के लिए मैं जो खोलना चाहती हूँ, जो वेब पेज उसे मैं थोड़ा कॉन्फ़िगर या फिर कुछ मॉडिफाई करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि HTTP सर्वर है वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो यहाँ पे मैं index.html फाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। Okay, is it visible now? Okay. Marwadi University. Now we have to save this, right? मैंने ये सेव कर दिया। अभी कोई भी पीसी से मैं वो वेब पेज को एक्सेस करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, गो टू दी ब्राउजर, mic was off. Online students, any doubt?
Default gateway, that will be the IP address of the server. If you have any query, you can ask me. क्या? तो अभी तक क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल किए कि एक भी नहीं किया? तो कभी बताया ही नहीं आपने। हाँ मैं एक बार आपको लास्ट में बताया था, मैं पूरा था तो कॉलेज में करना है, वापस उधर कुछ पढ़ना है, उस दिन मैंने आपको लास्ट में एक बार बताया था। पर वो तो ऑफलाइन आके बताया ना। नहीं ऑनलाइन बताया। अभी इंस्टॉल करो सिस्को पैकेट ट्रेसर फटाफट। तुम्हारे लैपटॉप में है? हाँ तो आप स्टार्ट करो प्रैक्टिकल। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे बताओ मुझे। टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट 0। TFTP जो है वो ऑफ कर दो। नहीं बाकी ऑफ ही होंगे ज्यादातर। कौन सा? DHCPv6 कर दो वो ऑफ। NTP रख दो, ईमेल ऑन रखने की जरूरत नहीं है।
ना Ma'am, what is the IP address at server side? Sorry, what, Aditya? What is the IP address at the server side? 10.10.0. 10.10.10.0. Done? आ रहा है आउटपुट? ओके, गुड. तो स्क्रीनशॉट लेके ये सेव कर दो प्रैक्टिकल. सारे स्टेप्स के स्क्रीनशॉट ले लो. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, after giving the IP address of all the PC and the server, what is the next step? After giving the IP address to all the PCs and the server, you need to configure the HTTP server. So for that, go to the server and turn on the services of HTTP. It's on, ma'am. और TFTP जो है उसके नीचे की लाइन में just off that service and then go Okay. ahead by modifying the index.html file. Done? Done? स्क्रीनशॉट ले लो. ये प्रैक्टिकल को सेव करके भी रखो और स्क्रीनशॉट्स भी ले लो. And what is the status of CCNA course? Only first chapter? एग्जाम भी दे दी. So you need to complete it before 15th March. 15th March is the deadline. हाँ, 11 chapters है. आपका क्या? 2 chapters ही हुए हैं सर. लेक्चर्स देख रहे हो ना? क्या है स्टेटस? कितना किया? कौन सा? सारी क्विजेस दे दी. एक बार कितनी बार लॉगिन कर? नहीं, लॉगिन के बाद में लॉगआउट कोर्स कर रहा हूँ तो आंसर दे लॉगआउट हो जाएगा. मतलब कोर्स की बात करो या सिस्को पैकेट ट्रेसर की? नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट ये कोर्स की. हाँ, क्या हो रहा है उसमें? लॉगिन कर रहे हैं उसके बाद ये क्विज दे रहा हूँ मतलब अपने आप ही लॉगआउट हो जाएगा. तुम्हारे साथ ये ऐसा हो रहा है या फिर दूसरों को भी हो रहा है? साथ ऐसा हो रहा है. सीसीएनए कोर्स नेटकेड की बात कर रहे हो ना? ऐसा क्यों हो रहा है? तो शायद पता नहीं वही बस तुमको ही हो रहा है या फिर दूसरे को भी हो रहा है? दूसरे कुछ लोग बोल रहे थे कि हो रहा है लेकिन अभी पता नहीं. ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि ये कोर्स काफी सारी बार हो गया है. आगे के बैच को भी ये कोर्स करवाया था. उसमें ये 10 चैप्टर तक कर लिया है. मैंने सारी क्विज दे दी 10 चैप्टर तक. पढ़ के दी है या फिर? पढ़ के ये रही. ओके फाइन. चैप्टर वाइज एग्जाम वो देना बाकी. वो कब करोगे? ये लॉग आउट हो जाए कर ही रहा था. स्टेप बाय स्टेप कर रहा था. वो एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूँ बाद में लॉग आउट हो रहा है. बोल रहे टाइम आउट हो गया. टाइम आउट दिखा नहीं रहा टाइम था तो फिर मैं सारी क्विज़ेस दे दी. एग्जाम दे रहा हूँ तो बाद में लॉग आउट हो जाएगा. कुछ टाइम आउट शुरू नहीं किया टाइम आउट हो जाएगा. चैप्टर पढ़ के नहीं देते होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है. अरे तो एक साथ 10 चैप्टर कैसे हो गए? 10 चैप्टर की दे दी ना. बहुत फास्ट हो तुम. अरे मैं परसों उसने वो डीके ने करवाया. 10 चैप्टर करवा दिए? हाँ वो हम दोनों
मेरा सब कुछ ही बाकी था, मैंने बोला कि मेरा सब कुछ बाकी है, तो मैं 3 घंटे पूरा कितने घंटे में होता है? सुबह सुबह टाइम नहीं था, ब्रेक किया था थोड़ा सा, टाइम पास भी किया था, अप्रोक्सीमेट टाइम तो पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे इनमें 2 दिन आराम से किया, 2 दिन आराम से किया, 2 दिन एक चैप्टर पढ़ती थी ऐसा। वो समझना नहीं है तो बोला है, करो तो तुम भी नहीं नेसेसरी सब कुछ जो भी मैं ले बोला खुद से थोड़ा अक्षर बाकी करता गया, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 1 प्लीज स्टार्ट करो, इसको पहले चैप्टर हो रहा है, चैप्टर 1 नहीं वही तो नहीं कब से मैं नाम बताया कोई नहीं रहा, मैं भी नहीं कर रहा, उसी के मैं बोल ही नहीं रहा मोबाइल क्या हुआ यहाँ पे? बोले कि अभी तो चलो पूरे के बाद से बात करेंगे, दूसरे की बात ये लॉगिन करना है लेकिन कोई नहीं रहता है, हाँ हार्वर्ड का लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले कैसे डाउनलोड हो रहा है, मैं डाउनलोड करने के लिए रखा, तो रखा था ये तो करो फिर से करो। प्रारंभ किया, हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, किसी का स्क्रीनशॉट आ गया चलो प्रैक्टिकल तो अभी से करवाया है, स्टार्टिंग प्रैक्टिकल ऑफ एचटीटीपी, और आप लोग चैप्टर की क्विज स्टार्ट कर दो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो रीएक्टिवेट नहीं हो सकती। Right? If you have not started the chapter-wise quiz, I have also sent you a mail on Saturday or Friday. Right? इस बार रीएक्टिवेट कुछ नहीं होगा, एक दिन दिया जाएगा फॉर कंप्लीटिंग द फाइनल एग्जाम। जब आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, चैप्टर वाइज एग्जाम सारे चैप्टर्स की हो जाएगी, उसके बाद फाइनल एग्जाम देनी है, फाइनल एग्जाम के बाद फीडबैक, और वो उसके लिए सिर्फ एक ही दिन दिया जाएगा, एक ही दिन फाइनल एग्जाम एक्टिवेट होगी, शायद सैटरडे या फिर या तो संडे, सैटरडे को आपको कॉलेज नहीं होती है शायद, तो शायद सैटरडे को ऑन की जाएगी, तब एक दिन में ही वो फाइनल फीस कंप्लीट करके सर्टिफिकेट जनरेट करना है और 15 मार्च के पहले गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। एक कोर्स तो सबमिट हो गया, एक का सर्टिफिकेट आया, मॉड्यूल 1 का क्या बोल रहे हो, हो ही नहीं सकता ना, पता नहीं ये थोड़ी देर पहले करती कौन सा नहीं ये हमारा कोर्स नहीं है, इसलिए तो फर्स्ट और सेकंड वही है, ये लास्ट सेमेस्टर का होगा आपका। फीडबैक में ये कोर्स में आपको कितना सीखने को मिला उस हिसाब से आपको पॉइंट्स देना होगा, ना देते तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, तो फीडबैक कंपलसरी है, फाइनल के बाद आपको फीडबैक देना रहता ही है। फोटोग्राफी वैसे होता है ना कि हम किसी और को फीडबैक दो, फोटोग्राफी सर्टिफिकेट भी ऐसे होता है हाँ एट द लास्ट, आगे के लास्ट में हम किसी और का फीडबैक करना, यहाँ पे तो कोर्स के बारे में ही पूछा जाएगा, तो वही फीडबैक रहेगा। If you have completed your practical, start chapter wise quiz exam, it's already activated. हाँ मुझे बनाना है, मैं भूल जाती हूँ, मैं बना दूंगी वो।
Hello, ma'am. Yes. I'm getting server reset connection error. Share your screen. What is the course for mid-sem? Chapter number 1, 2 and 3. मिड सेमेस्टर का कोर्स आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन लेयर एंड चैप्टर नंबर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? सो ये 3 चैप्टर्स होंगे. यस विधि? Yes, ma'am. हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? Server reset connection ऐसी error आ रही है. सर्वर Reset connection. सर्विसेज पे जाओ. हाँ, पहले वो ट्राई करके दिखाओ. ओके, आई नीड टू चेक द आईपी एड्रेस. 10.10.0 देना है डियर वहां पे. Okay. 10.10.10.0. It's there? Yes, ma'am. Okay. Now, Aditya, unmute your mic for a while. Yes, ma'am. What is the status of CCNA course? I've just started last week, ma'am, Saturday. Okay. Have you appeared for the quiz exam? Uh, Quiz कोई भी दी है Chapters. किसी chapters की? No, ma'am. So I think you know 15th is the deadline. Yes, ma'am, I will do from now. I was just going through the content actually. हाँ, तो पहले ये कंप्लीट करो. अभी ये प्रैक्टिकल हो जाने के बाद स्टार्ट CCNA कोर्स बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 20 मार्क्स है उसका. Okay, okay. Just go through the course. Devansh, Yes, ma'am. what about you? How much it is Ma'am. completed? Third. Chapter number 3. So have you give means ma'am. आपने 3 chapters की एग्जाम्स दे दी है? चैप्टर वाइज एग्जाम या क्विज? Exams. Ma'am, exam and Exam. quiz not that early. Sorry, I'm not getting your point. Exam and quiz I will do today. Not even any. Okay, no problem. Complete it before 15th March. All the chapter 1 to 11 quiz and 1 to 11 exam. Okay, ma'am. Okay, Manav. यस मैम. आप बताओ आपने कितना किया? क्विज हो गया मैम. सारी क्विज हो गई है. एग्जाम दे रहा हूँ. ओके, 1 to 11 की क्विज हो गई है. यस मैम. ठीक है, और एग्जाम? अभी दे रहा हूँ मैम, चैप्टर 1 से. ओके, स्टार्ट डूइंग दैट. ओके मैम. मोहम्मद यासीन, Yes, ma'am. what you have done in CCNA? Ma'am, I completed only chapter 1. Okay, so you have just given the quiz of chapter 1. Yes, ma'am, quiz. And I will do the exam by today. Do it as soon as possible. Complete this task. You Yes, have to ma'am. do it on priority basis. Okay, ma'am. Nikita, how much you have completed, Nikita? No, I just started. You have not given any quiz yet? No, ma'am. So start doing it right now. Right? Yes, ma'am. I'll take follow up at the end of this lab. Right? अभी 9:46 हुआ है. मैं फिर से
tan 45 को सबका फॉलोअप ले रही हूँ फिर से कि कितना हुआ अभी तक. Okay. Yes, ma'am. So start doing it. Pathik, Yes, ma'am. how much you have completed? Ma'am, 4 chapter 4 chapters. की क्विज दी एग्जाम बाकी है. क्विज की हाँ. एग्जाम, क्विज और एग्जाम दोनों बाकी है. क्विज ना और ना ना एग्जाम. क्विज हो गई है, एग्जाम बाकी है. ओके, सो क्विज कितने चैप्टर्स की हुई है? क्विज 4 की हुई है. ओके, सो क्विज जल्दी खत्म करो और उसके बाद चैप्टर वाइज एग्जाम स्टार्ट कर दो. ओके ओके Right, you have to complete this task on Okay. priority basis. 15th March is the deadline. 15th March तक रुकना नहीं है. 15th March के पहले आपकी फाइनल एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, राइट? तो 15th March आई थिंक मंडे है जब आपकी मिड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रही है. सो योर फाइनल एग्जाम विल बी ऑन Yes. 12th और हाँ. 13th March फॉर CCNA कोर्स, राइट? अगर ये सारी चैप्टर की एग्जाम खत्म नहीं की है, सो you cannot appear for the final exam. So you have to complete it before 12th March. Start doing it right now. Riddhi Shah, आपने कितना कंप्लीट किया? मैम फर्स्ट चैप्टर हो गया, बाकी का ओके, फर्स्ट चैप्टर की क्विज हुई या फिर एग्जाम? नो मैम, डन विद द क्विज. Okay, so start doing the quiz. Have you done the practical Yes, which we have performed today? Yes, Okay, ma'am. good. Okay, Vidhi, यस मैम. आपने कितना कंप्लीट किया है? और फर्स्ट चैप्टर हो गया और उसकी क्विज हो गई है. Okay, first chapter और उसकी quiz. Okay, start doing the second and the rest of the chapters. यस मैम. Yashang, यस मैम. आपने कितना कंप्लीट किया है? सेम फर्स्ट चैप्टर और क्विज हो गया, सेकंड कर रहा हूँ. Okay, so start doing the second chapter. I'll again take the follow up at 10:30. 10:30 को मैं फिर से फॉलो अप करना स्टार्ट करूंगी and I want every one of you to at least complete 4 to 5 chapters. Quiz and exam both. Yes, after configuration of HTTP you can start the CCNA. अगर ये प्रैक्टिकल हो गया है तो आप CCNA स्टार्ट कर सकते हो.
ખાય છે સીસી અને કોર્સ સ્ટાર્ટ કરો. चैप्टर्स रीड करके एग्जाम देनी है. करो છો क्या मतलब ये भूल जाओगे तो कैसे चलेगा. Yes, definitely I'll upload the PPT of chapter number 2 मानव पर अभी एक बार खत्म हो जाने के बाद because only I think DNS we have completed but there are some things which is remaining today that we'll cover today, right? तो उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है that is a socket programming, right? So आज DNS खत्म करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग कर लेंगे and then after I'll upload the PPT of chapter number 2. ठीक है? And I'll give you some questions which you can refer for chapter number 1 and chapter number 2. Exam form?
format. There will be 3 marks question and 6 marks question. जो हर बार रहता है वही. क्या? Diploma. Okay, so chapter number 1, 2 है, 3 है, तो 3 marks के question होते हैं, 6 marks के होते हैं, और I think 1 to 5 MCQs होते हैं. ऐसा ही होता है ना फॉर्मेट? आपने दी है मिड सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में? हाँ. कौन कौन से मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं मिड में? भूल गए एक साल में सब कुछ. एक साल हो गया. हाँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जनरली. इन थियरी सेशन लास्ट थियरी सेशन में हम लोगों ने डीएनएस स्टार्ट किया था या फिर सेकंड चैप्टर था डीएनएस का? We have started and we have gone through the query. We have seen. Have we seen the types of DNS servers? हाँ, वो टाइप्स कर लिए थे ना? हाँ, DNS resolver, then root DNS, top level domain, authoritative DNS, right? So that 4 parts we have done. वो हो गया था. Right? So today we'll see the different types of queries, that how the DNS will fire the queries. Right? So that part we'll see today. और आज पूरा लेक्चर DNS में ही जाएगा, so DNS आज पूरा कर लेंगे हम लोग.
लॉगिन कर अपलोड इसको पहले एड्रेस से डाउनलोड कर लो। इसमें भी नेट का सारे और डायरेक्ट लिंक ना कर आप लोगों में नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ से देखिए। हाँ तो आज करवा लेना याद करो 2 बजे के बाद बोला है ना ये वाला बच्चे 2 बजे के बाद जाना लैपटॉप में लगा दो मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू कर दियो हां मेरे क्या करना हॉस्टल वाला पैसे कितना होगा हॉस्टल ना ये वाला लोगिन वाईफाई मैच इक्वल्स टू कोई नहीं जा सकता मैं कॉल कर रहा हूं मेरे पास ठीक है बिना हॉस्टल की वाईफाई नहीं साथ कनेक्ट नहीं साथ तो जब मैच चालू होगी 1 वर्ष की होगी अरे मैम आप लोग आए नहीं आप इजी में भी आ जाओ से हम तो हॉस्टल अच्छी हो हां हॉस्टल तो कैसे लॉगिन में बैठा आओ मेरे खाना वाले हमारा हाँ वाईफाई ऑफ नहीं है जो तो इंटरनेट केबल कोई बात नहीं है तो वाईफाई की बहुत टाइट है डिप्लोमा से कितने स्टूडेंट्स हैं बीटीबी के उनकी ही को क्लास और कितने हैं ओके सो इस सेमेस्टर में ही एक क्लास में आप लोगों ने due to the third semester the last semester ओके थर्ड सेमेस्टर में अभी कहता है तो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस की पहली बार ओके तो आपने डिप्लोमा कहाँ से किया आज में इलेक्ट्रिक डिप्लोमा करें नंबर 2 में मुझे इंटरेस्ट कंप्यूटर को ये बात नॉलेज फ्यूचर स्कोप बस डिप्लोमा है ना डिप्लोमा उसने कर लिया था हाँ बीटेक स्कोप स्कोप
I hope you all are doing the CCNA course. I'll ask everyone individually to share their screen. चैप्टर 2 जो हमने कंप्लीट किया थियरी में, उसमें से कोई डाउट हो रहा है तो वी कैन अरेंज वन रिवीजन सेशन फॉर दैट. क्योंकि हमारे पास वी हैव वेरी फ्यू लेक्चर्स बिफोर मिड सेमेस्टर. आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रही है 15 मार्च को, राइट? और उसमें सीएन का पेपर कब है?
17th of March, थर्ड है ना? ओके। और आपका टाइमिंग क्या है मिड सेमेस्टर का? 9 to 10:30। सेमा? Is it required? Syllabus, which chapter? Three chapters are there. Third chapter तो sir ले रहा है, so it's not on my hand. I think I can take a revision session of chapter number 1 and chapter number 2. Right? Third का जो portion है, that is conducted by the sir. तो आप उसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप सर से पूछ सकते हो, मुझे भी पूछ सकते हो। आई डोंट हैव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट? सिलेबस भी करवाना है। और आपकी टर्म एंड डेट क्या है? इतनी लेट नहीं होगी। आ गया है, दिखाओ टर्म एंड डेट। Online students, do you require a revision session for chapter number 1 and 2? Okay, we'll keep one revision session for that also. क्या 15th में टर्म एंड डेट है। क्या ESE एग्जाम कैलेंडर है आपके पास? पोर्टल में दिखा रहा है या फिर मैडम ने भेजा था? ग्रुप में आया था।
Okay, so 15th May is your term and tentative exam date 24th May and result date July. Okay. तो हमारे पास मई तक का टाइम है 15th में टर्म एंड है यानी कि उसके पहले सबमिशंस और वाइवा तो हो ही जाएंगे फिर एक वीक आपको रीडिंग होगा दैट मींस फ्रॉम 15th to 24th राइट और उसके पहले वाइवा सबमिशन सो आई थिंक 7 to 15th वाला वीक होगा दैट इज द सेकंड वीक ऑफ मे दैट विल बी ऑफ वाइवा एंड सबमिशन so we have to complete our course before the first week of May or on the first week of May. So 7th May तक complete करना है, right? So we have only 2 months, March and April. फिर ये 15 से तो एग्जाम स्टार्ट हो रही है, so उसमें टीचिंग सस्पेंड होगा. मिड के बाद, पर मिड के पहले मीन्स मिड जो है वो वाला स्लॉट तो कैंसिल ही होगा. ड्यूरिंग मिड सेमेस्टर एग्जाम्स आपके जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइमिंग है वो तो ऑब्वियसली कैंसिल ही होंगे बट मिड के बाद रेगुलर सेशंस विल बी देयर. Four. We have in total 5 chapters. तो वह फर्स्ट सेकंड मैंने ले लिया थर्ड सर करवा रहे हैं और फोर्थ और फिफ्थ मैं लूंगी. Okay, online students. Dipen, you have joined late. Why? Dipen कौन है? D2D student है? Why you have joined late, Dipen? Okay, have you done the practical?
आपने बहुत ही लेट ज्वाइन किया है, सो ऑब्वियसली यू हैव नॉट परफॉर्म द प्रैक्टिकल, राइट? इट्स ओके, यू आर डूइंग द क्विज, पर प्रैक्टिकल्स कितने हुए हैं आपके? थ्री लास्ट इज लेफ्ट। तो आज हमने किया था, वो आई थिंक 5th प्रैक्टिकल था। ओके, सो बाय एंड ऑफ द डे आई सर्कुलेट द फॉर्मेट। फॉर्मेट आज शाम तक मैं प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द लैब मैनुअल इन दैट फॉर्मेट ओनली। ऑब्वियसली उसके भी तो मार्क्स है। एक ही वर्ड फाइल में सारे प्रैक्टिकल्स। लैब मैनुअल कैसी होती है? इंडेक्स में 1 to जितने भी प्रैक्टिकल्स आई थिंक 10 या 11 प्रैक्टिकल्स है, वो रखने हैं इंडेक्स में। फिर तो तुम किस में बोल रहे थे? नहीं नहीं, इसमें लिखने का थोड़ी ना है, इसमें प्रोग्राम्स नहीं है ना। सो ऑब्वियसली प्रोग्राम लिखने की तो चीज है। Now we have to pre-test exam in CCM। pre-test exam है उसमें, चैप्टर वाइज एग्जाम उसमें प्री-टेस्ट एग्जाम है हर एक चैप्टर में। हाँ तो वो देनी है। चैप्टर वाइज एग्जाम कब दोगे? उसमें तो 75 प्लस। तो अभी क्यों नहीं दे सकते? तो અત્યારે પ્રિપેર કરતા જાઓ, એનો તો ટાઈમ આપું છું। જસ્ટ ગો થ્રુ ધી ચેપ્ટર્સ અને પછી આપો। એક એક ચેપ્ટર ની આપો। चैप्टर 1 प्रिपेयर करो, देन गिव चैप्टर 1 एग्जाम। चैप्टर 2 प्रिपेयर करके चैप्टर 2 की एग्जाम। बट गिव दिस टास्क हाईएस्ट प्रायोरिटी। समझ रहे हो ना? मिड 1 के पहले क्यों कंप्लीट करवा रही हूँ? 20 मार्क्स है मॉड्यूल 1 के, राइट? वो 20 मार्क्स में से कुछ कट नहीं होगा, वो डायरेक्टली पेस्ट होंगे रिजल्ट में। इसका कोई परसेंटेज नहीं है। काठियावाड़ी रोकड़ा मार्क्स। We need to complete both module before 15. No. You just have to complete the module 1, dear. Module 1 ही complete करना है, दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि दोनों में दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो एटलीस्ट कितने 30 चैप्टर्स तो हो जाएंगे। 11 तो इसमें है, 11 है ना। तो शायद नेक्स्ट मॉड्यूल में 12 होंगे, तो ऑब्वियसली 20 to 23 हो जाएंगे। तो इतना नहीं होगा आपसे 15 से पहले। और ऐसे नहीं करना है, चैप्टर रीड करके देना है। एंड फॉर जनरेटिंग द सर्टिफिकेट एटलीस्ट you need to you must have a 75% स्कोर। अगर 75% नहीं है तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, राइट? अगर सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है
तो ये कोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो एक गूगल क्लासरूम में आप लोगों का एक क्लास बना रही हूँ, जस्ट ज्वाइन दैट। I am pasting the invitation link in the chat box for joining the Google Classroom. मेल कर देती हूँ। Your class strength is 83. पहले ज्यादा थी कितनी? हाँ तो 2 ही गए। पहले किया वो रवि सिंह गया, कभी लक्ष्मण गया, कहीं छोटी पे चला गया, कहीं पिता चला गया। થઈ ગયો ડ્રાફ્ટ। ગ્રુપમાં પેસ્ટ કરીશ તો પછી બીજા લોકો માગશે, અમે તો નહોતા અત્યારે, we are absent, so what to do in that case? મેલ હોય તો તમારી પાસે રહી ને, so you can join anytime. So I'm sending a Google Classroom link in your mail also, so you have to join that link, right? Or you have to submit the certificate over there only. आपको सर्टिफिकेट भी वहां ही सबमिट करना है, right, before 15th March. Okay, so when more student has joined, Smith Kumar, why you have joined late, Smith?
Smith, Yes, ma'am. why you have joined late? You were not there before. I remember joined late at about 9:40, I think so. Not at 9:40, dear. You were too late. You have just joined now. No, ma'am, not now. So, I just joined around 9:40 to 9:15 in between. I no, think no, so. no, no, dear. At 10 o'clock, at 10:15, you were not there. No, ma'am, I was there. No, no, I haven't joined that much late. Have you performed the practical? No, ma'am, I was doing the quiz and the exams. How many practicals you have done? One, two, maybe one or two. Which are they? The first one, which we have to connect all this and IP config all, and we have to set the password when we log in it. Using CLI. Yes, in the Cisco packet tracer. And what was the second? In the second, maybe I have not attained the classes, ma'am. Okay, so till now you have just done only one practical, dear. Yes, ma'am, I know that. So when will you do that? I When will will do you in submit? I will do in this week, ma'am. Okay, so in the next lab, I want all the 5 practicals. Today we have performed the 5th practical. And in the Okay, next lab, I want all the 5 practicals at your end. Okay, ma'am. I will make Okay? sure I will complete all the practicals. Yes, ma'am. Okay, Tushar, what about you? Tushar Shethia? Ma'am, I will also show till next week. आपने अभी ज्वाइन किया? मैम यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है मैम, 2-4 दिन से नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है, बीच में आया था एक बार, बट काफी बिफोर नेटवर्क 15 फ्लक्चुएशन मिनट्स ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लैब मैम यहाँ खत्म पे होने से ज्वाइन 15 मिनट्स नहीं कर पहले? पाया था, आई वाज़न्ट एबल टू ज्वाइन मीटिंग, पता नहीं क्यों? यहाँ पे बहुत नेटवर्क का वो इशू हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा, नॉर्थ ईस्ट में काफी नेटवर्क का इशू आ रहा है। आप कहाँ पे रहते हो? नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी असम। ओके। लास्ट 1 वीक से ये इशू चल रहा है, कल भी मैं कौशा मैम पूछा था, हम बोल दिया था ये। आज तो आपने बहुत लेट किया, ऐसा नहीं लगता है आपको? 10, it's almost 10:40. Ma'am, it doesn't require you can put off the attendance for me, but यहाँ पे नेटवर्क फ्लक्चुएशन काफी चल रहा है तो हम ज्वाइन नहीं कर पा रहा, बीच बीच में ये स्किप हो रहा है, लास्ट 1 वीक से हो रहा है। ओके, आप वाईफाई लोग इज यहाँ आल्सो पे नॉट। ऑफलाइन कब आ रहे हो? तुषार, आप ऑफलाइन कब आ रहे हो? मैम नो आइडिया राइट नाउ। सो मिड सेमेस्टर के लिए बिकॉज आना होगा आपको? यहाँ पे केसेस बढ़ गया तो यहाँ पे मेरे घर के सामने कंटेनमेंट जोन आ गया, तो अभी तो रिस्क लेके फायदा नहीं है। सो मिड सेमेस्टर के लिए क्या करोगे? मैम कौशा मैम बोला कि मेल कर दो, तो मेल कर दिया मैम को, रीजन बता दो किस लिए नहीं आ रहा, मेल कर दो। ओके ओके, आपने प्रैक्टिकल्स कितने किए हैं तुषार? मैम प्रैक्टिकल्स 2 हुआ होगा मेरा, मैम हुआ नहीं है कंप्लीटली, वही इश्यूज आ रहा है, काफी इश्यूज आ रहा है यहाँ पे, बट टिल नेक्स्ट वीक आई कैन शो यू ऑल द 5 प्रैक्टिकल्स। ओके, और सीसीए ने कोर्स स्टार्ट किया है कि नहीं आपने? ज्वाइन किया था आई गेस सो, आई हैवंट स्टार्टेड बट आई हैव जॉइंड इट। ओके, लॉगिन हो रहा है, वो सब देख लिया? हाँ लॉगिन हो रहा था, आज वापस हम चेक कर लेगा, एनीथिंग विल बी इशू आई विल कांटेक्ट यू। हाँ, अगर कुछ है तो पहले कांटेक्ट करना मुझे, क्योंकि 15th March is the deadline, and if you have still not started, you will not able to complete on 12th or on 15th. ओके मैम, आई विल स्टार्ट इट टुडे बाय टुडे ओनली। हाँ, देख लो एक बार, बहुत सारे चैप्टर्स है, and give this task the highest priority because it has 20 marks. ओके मैम, ओके मैम। मैम। यस स्मिथ। मैम अगर हम कैंपस में ना आए एग्जाम देने तो क्या होगा?
मतलब क्यों नहीं आना है? मैम एज पर रूल्स एनओसी लेके आना है, बट माय पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड मी ऑफ देयर। एग्जाम के लिए तो आना ही होगा ना? हाँ, बट पेरेंट्स आर मोर कंसर्न आफ्टर दैट हियरिंग के हमारे वार्डन को ही कि कोरोना हो गया है, तो दे आर नॉट नॉट एनी कोर्स दे आर विलिंग, दे आर सेइंग मी के इट्स ओके टू फेल हो जा, एक साल बिगड़ जाएगा चलेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू सेंड यू ऑफ। ओके, आप कहाँ से हो स्मित कुमार? आई एम फ्रॉम सूरत मैम। Okay, so just discuss with your class counselor for the same. ओके मैम। मोबाइल Just start with the practical what we have performed today.
The attendance. गवर्नमेंट जॉब का वेबसाइट है तो यहाँ से डीएनएस द्वारा कई वेबसाइट कोई पण वेबसाइट कोई अगर वायरस इन्फेक्टेड वेबसाइट तो गवर्नमेंट द्वारा बनेगा ब्लॉक डीएनएस ऑथेंटिकेशन ब्लॉक के जाकर ब्लॉक करना है DNS, the purpose of DNS is just to convert the domain name into an IP address. ऑथेंटिकेशन हाँ 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 any માટે અલગ servers હોય to block the particular website, but that comes under the hierarchy of DNS we can say, but specific DNS નો કહી શકીએ કેમ કે DNS માં બહુ બધી hierarchies છે. Okay, one, Smith. Yes, ma'am. Two. Present, ma'am. 4. Yes, ma'am. 5. 6. 6 is there. A batch માં ખાલી AI જ છે ને? So why it's not showing in my? एक मिनट हाँ. મારામાં TP1 જ બતાવે છે. और एक बच्चा है वो चला गया है पूरी Okay, 7 is there. 57. Nikita.
57 is there. 58. 68. Yes, ma'am. Present. 69. 71. There's 1. Jaideep. 2. 3. 4. 5. 6. 5 absent, right? So 7, 57, 58, 69, 1, 3 and 5 from AI. Ma'am, AI5 present. D2D5, Kunal Joshi. Okay, AI. Sorry, big data. TO1. Big data 1. 2. Yes, ma'am. 3. 4. 5. Present, ma'am. 7. 4. Yes, yes. 7 is absent. 8. 8 is there. 9. Present, ma'am. 10. 11. 12. 13. Yes, ma'am. Okay, so 1, 3, 7, 8, 12 from big data. No, ma'am. Okay. 13. 13. Sorry, 1, 3, 7, 8 and 12. Ma'am, 13 big data. 13 is marked as present, dear. I have announced the names, numbers who is absent. Okay, okay, ma'am. Okay, you may leave. Yes, you may leave.